A very good morning to you, children. How are you all? I hope you all are fine. So, today in the English class, we are going to continue with lesson number 4, which we started in the previous class, that is Po. And so far, if you remember, I have done section 1 with you, and I hope you have read it 2-3 times and you are clear with all the doubts. So far we had read that the writer, he was so attached to his Po, who was taking care of him, and Po was doing a lot of things for the writer. And the last thing which we studied was that they had taken him to a herbal doctor who had prescribed a bundle of herbs which was to be made into a medicine, and that medicine was supposed to be given to the author. So Po, she used to make that medicine for 4 hours, and then that bitter medicine was given to the author. So today we are going to continue with section 2. But before I continue, I want to remind you about the precautions which we need to follow in order to control coronavirus, and those precautions are use of face masks, maintaining hand hygiene, and maintaining social distancing. And I hope you are taking care of all these things. So let us continue with section number 2 of chapter 4. It was very difficult to make me drink 3 times a day after meals the dark brown liquid made from all the herbs. So now the author is saying कि that medicine which was given by the doctor, वो मेडिसिन उसको दिन में 3 टाइम्स लेनी पड़ती थी मील्स के बाद, और वो मेडिसिन जो थी इट वॉज वेरी बैड. ब्राउन कलर का लिक्विड जो हर्ब्स को सिमर करके वाटर में बनता था वो बहुत ही गंदे टेस्ट का था. इट वॉज हॉरिबल टेस्टिंग. आई एम श्योर इट वॉज द मोस्ट हॉरिबल टेस्टिंग मेडिसिन दैट एनीबडी हैज एवर हैड टू टेक. I was only 2 years old and was way beyond reasoning. It took Po great effort and patience to get the medicine carefully prepared. Now that author is saying that medicine was most horrible. Horrible means bad. बहुत गंदी, बहुत कड़वी दवाई थी जो उसको 3 बार लेनी पड़ती थी. And since he was only 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल का था, it was beyond his reasoning, means उसको समझ में नहीं आ रहा था. He could not understand कि क्यों उसको इतनी कड़वी मेडिसिन लेनी पड़ रही है. लेकिन साथ ही साथ जो पो थी उसकी, वो जो एफर्ट कर रही थी, वो जो मेहनत कर रही थी उस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, दैट वॉज ऑल्सो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फॉर हिम कि पो इतनी मेहनत क्यों कर रही है एक गंदी सी दवाई बनाने में. इट टुक पो इवन ग्रेटर एफर्ट along with some magic to actually manage to get the yucky liquid into that stubborn little mouth of mine 3 times a day. Now the writer is saying कि जैसे पो के लिए वो मेडिसिन शी हैड टू प्रिपेयर, वी हैव रेड कि 4 आवर्स तक वो मेडिसिन प्रिपेयर होती थी. वो प्रिपेयर करना तो डिफिकल्ट था, बट साथ ही साथ वो जो मेडिसिन यक्की लिक्विड मीन्स दैट बैड टेस्टिंग मेडिसिन, उस बैड टेस्टिंग मेडिसिन को स्टबन मीन्स वेरी हार्ड. अब आपने देखा होगा कभी छोटे बच्चों को व्हेन वी मेक देम ड्रिंक सम मेडिसिन, व्हाट दे डू, दे होल्ड देयर माउथ टाइटली. बहुत टाइटली अपना माउथ जो है वो बंद कर लेते हैं कि दवाई मुंह में ना डले. तो इसी तरह द राइटर यूज टू डू, ही यूज टू मेक हिज माउथ स्टबन, उसको स्टिफ करके बिल्कुल बंद कर लेता था ताकि पो मेडिसिन ना डाल पाए. लेकिन पो कोई मैजिक, कोई ट्रिक, कोई बातों में लगा के उनको वो मेडिसिन पिला देती थी. बाय द एंड ऑफ द 8th month आई वॉज कंप्लीटली क्योर्ड. Po, on the other hand, had lost about 20 pounds. So that medicine author had to take for how much time? 8 months. पूरे 8 months उनको वो मेडिसिन लेनी पड़ी, और आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन फॉर 8 months ही वॉज कंप्लीटली ऑल राइट. उसकी जो प्रॉब्लम थी नोज ब्लीडिंग की, वो पूरी तरह से ही ठीक हो गई. एंड
Another result was जो पो थी उनका 20 पाउंड्स वेट कम हो गया था. 20 पाउंड्स. पाउंड्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 ग्राम्स. सो 20 पाउंड्स जो वेट था वो पो का कम हो गया था. वाई? बिकॉज पो वॉज डूइंग सच एन एफर्ट. पहले वो 4 आवर्स मेडिसिन को प्रिपेयर करती थी एंड देन शी यूज टू मेक ऑथर ड्रिंक दैट मेडिसिन 3 times a day. सो ये सब मेहनत एफर्ट करने में पो जो है शी बिकेम little bit weak. Though we returned to America after 1 year, Poe and I have met many times since then. Mom continued to go back to Taiwan for short-term teaching assignments. She took me with her at least once a year, and we got to spend a lot of time with Poe on every visit. Every time we came back to the States, our suitcases would be overflowing with foods, clothes and toys that Poe had bought for us. Now, they had stayed in Taiwan, as we had read कि author की mother की job थी, तो वो job सिर्फ 1 year तक करी उन्होंने and then they both returned to अमेरिका. लेकिन अमेरिका लौटने के बाद भी पो के पास उनका बार बार जाना होता था. मॉम एंड द ऑथर दे यूज टू विजिट पो, क्योंकि कुछ कुछ असाइनमेंट्स के लिए मॉम को ताइवान बार बार जाना पड़ता था. एंड एवरी टाइम व्हेन शी यूज टू गो टू ताइवान शी यूज टू कैरी ऑथर विद हर एंड देयर ऑथर यूज टू एंजॉय विद पो. एंड वेन एवर दे केम बैक, जब भी वो वहां से वापस आते थे उनके सूटकेसेस कंप्लीटली भर जाते थे फूड से, क्लोथ से, टॉयज से. व्हाट हैपेंस विद यू पीपल? क्या होता है आपके साथ जब आप लोग भी अपनी नानी के घर जाते हैं और फिर वहां पे जाकर टॉयज, फूड्स, क्लोथ सब कुछ नया नया अच्छा अच्छा मिलता है और जब वो चीजें लेकर आप लौटते हैं अपने घर पे तो आपका सूटकेस या आपका लगेज पहले से ज्यादा हैवी हो जाता है. यही होता था पो और ऑथर और उसकी मदर के साथ. When Poe saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. Trying to cheer me up, Poe said, "Don't be sad, Abe. We'll see each other again sooner than you think. Besides, we'll always be together in our hearts." However, I detected some shakiness in Poe's voice and tears in Poe's eyes. So जब भी पो जो है, जब ऑथर और उसकी मदर वापस आती थी तो पो जो है उनको एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने छोड़ने आते थे एंड देयर दे बोथ हैड टीयर्स इन देयर आईज. दोनों की आईज में आंसू होते थे. सो वाइल सी ऑफिंग देम, पो जो है वो एब यानी ऑथर को समझाती थी कि यू शुड नॉट फील बैड, वी विल मीट अगेन, डोंट वरी, वी आर क्लोज टू ईच अदर. बट ऑथर ऑल्सो न्यू दैट पो इज फीलिंग सैड. पो की आंखों में आंसू हैं एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी काम. पो वॉज इन्वाइटेड बाय मॉम एंड डैड to come and visit us in the States. I was so excited that I could not sleep the night before. The day Poe arrived, Mom and Dad took me to the San Francisco International Airport. I was going to give Poe a big hug, but Poe called out, "Oh, be careful, Ab. I've got my hands full." So, after some time, Poe was invited by author's mom and dad to come and stay with them and she was coming. तो कभी कभी नानी भी आ जाती है ना हमारे घर पे. तो जब नानी को आना होता है या हमारे घर में कोई गेस्ट आना हो, जब हमें पता है कि दे विल अराइव टुमारो, सो हाउ वी फील? रात भर नींद नहीं आती है, एक्साइटमेंट होती है. सेम वॉज द कंडीशन विद दी ऑथर. और नेक्स्ट डे ऑथर जो है वो अपने मॉम एंड डैड के साथ सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया जस्ट टू पिक पो. एंड ही वॉज प्लानिंग कि वो पो को जैसे ही देखेगा वो उनको बिग हग देगा. बट वेन ही सॉ पो सेड, "डोंट कम नियर मी
because my hands are full. मेरे हाथ भरे हुए हैं इसलिए मेरे पास मत आना. In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 30 pounds. Po had insisted on hand carrying it halfway around the world so that delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squeezed or smashed. So what had Po brought? Why were Po's hands so much filled? बिकॉज पो जो है वो ऑथर की फेवरेट चाइनीज पेस्ट्रीज, और कितने वेट की पेस्ट्रीज? अबाउट 30 पाउंड. सो बहुत सारी पेस्ट्रीज उसके लिए लेकर आई थी. एंड शी हैज ऑल्सो इंसिस्टेड वो सारी की सारी पेस्ट्रीज हैंड कैरी, मतलब पूरा टाइम इवन इन द एयरक्राफ्ट वो उन पेस्ट्रीज को अपने हाथ में ही पकड़ कर लाई थी. वाई शी डिड दैट? सो दैट वो जो डिलिशियस और डेलिकेट पेस्ट्रीज हैं दे शुड रीच द ऑथर फ्रेश एंड लुक नाइस. वो स्क्वीज ना हो जाए, मतलब वो पिचक ना जाए. वॉट हैपन्स टू पेस्ट्रीज और केक? अगर हम उनको डेलिकेटली नहीं लेकर आए तो वो स्मैश हो जाता है, उसकी क्रीम उतर जाती है एंड इट बिकम्स वेरी डर्टी टू लुक एट. बट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, पो जो है वो इतनी सारी पेस्ट्रीज जो हैं वो पूरे एयरक्राफ्ट में अपने हाथ में पकड़ कर लाई थी सो दैट शी कैन गिव देम टू द ऑथर. I could just write a whole book about the nice things that Po has done for me, but I can never fully express my appreciation for Po. Now, writer is saying कि if he starts writing a book, so he can write a full book. पूरी की पूरी एक बुक लिख सकता है वो पो के बारे में, पो के उन नाइस थिंग्स के बारे में जो पो ने उनके लिए की हैं. और वो कितना भी लिख ले, he will always be full of appreciation. उसका हार्ट हमेशा ही पो को अप्रिशिएट करता रहेगा, उनको थैंक करता रहेगा, क्योंकि पो ने उसके लिए बचपन में बहुत कुछ किया था. पो is the most caring and loving person that I have ever known besides my parents. So पो जो थी वो ऑथर के लाइफ में सबसे लविंग और केयरिंग पर्सन थी. सबसे ज्यादा हमारे लिए लविंग और केयरिंग हमारे पेरेंट्स होते हैं, और उनके अलावा अगर किसी ने ऑथर को इतना लव और इतना केयर दिया तो दैट वाज पो. बाय द वे, पो इज 72 years old now. Now he is saying कि when he is writing that book, Po is 72 years, and who is she now? Actually, he is telling that Po is the mother of my mother. So as we guessed, she was his grandmother. वो उसकी नानी थी, because Po is the Chinese word for grandma. So चाइना में grandma को Po कहा जाता है, इसीलिए ये स्टोरी है. और अब हमें ये पता लगा that Po was author's grandmother. वो उसकी मदर की मदर थी. एंड वी ऑल नो दैट ग्रैंड मदर्स आर वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो बचपन से लेके चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस एंड वी ऑलवेज लव देम. So children, I hope the section 2 of the story is clear to all of you. You read this passage 2-3 times so that you are clear with all your doubts, which we can take up in the next class. Till then, have a nice day.